Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss aggregate functions for the topic SQL queries and the unit is database concepts for class 12th IT students. So let's see what are aggregate functions, and this is very important topic because we know that one topic can be used in many other queries also. Like if you will see group by clause, then aggregate function is used with group by clause also. तो एग्रीगेट फंक्शन से इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आया हुआ है सीबीएसई सैम्पल पेपर में, और ग्रुप बाय में भी ये यूज़ होता है. तो ओब्वियसली जब ग्रुप बाय से क्वेश्चन आएगा तब भी आपको वहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए. सो लेट्स सी व्हाट इज़ एग्रीगेट फंक्शन. It is used to perform the calculation on multiple rows. So you can perform calculation on multiple rows, means more than one rows of a single column. So you can perform calculation, any kind of calculation, like you can count the number of rows or you can take the sum of multiple rows of a single column. तो सिर्फ एक कॉलम की रोज पे आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, एंड इट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू. इट मीन्स आउटपुट इज a single value. If you are using any of the aggregate functions, you can see there are 5 aggregate functions which are used in SQL. One is count, another is sum, max, min and average. So there are 5 functions and these all returns a single value. For example, what do you mean by this single value? For example, if you are using sum salary, okay, you are using some function in this salary column, so it will calculate total of all these values and will give a single value which is sum of all the values in these rows. Now let's see what are these count function, sum function, max, min and average. Now what is count function? So count function is used to count these number of tuples in a table. Okay, so this count function is used in three different ways. One is count strict. So this strict means all the records. Okay, so if count function is having asterisk as an argument, then it means it is going to count all the records. So what will be the answer here if I am going to apply this function count asterisk for this table? So you can see this is first row, then second row, then third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. So 8 rows are there, so 8 will be the output for this table. Now next, count salary. If you are going to pass any field name as an argument in the count function, then what it will do, it will return number of non-null values. It means the records which is not having any null value. So for example, like there are 2 rows which are having null values, so these rows will not be counted. ये दोनों रो आपकी count नहीं होगी. So what are the number of rows now? 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि काउंट स्ट्रिक में इवन नल वैल्यूज़ भी इंक्लूड हो जाती है. नाउ काउंट डिस्टिंक्ट सैलरी. तो आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में डिस्टिंक्ट पढ़ा था. डिस्टिंक्ट मीन्स यूनिक. तो यहाँ पे सैलरी जो यूनिक है, एक 7 है, देन 5 है, ये रिपीट हो रही है तो ये नहीं काउंट होगी. नाउ 4500 है और 40,000 है. अगेन दिस इज़ रिपीटेड, सो इट विल नॉट बी काउंटेड. सो देर आर 4 यूनिक सैलरीज. So we will write here 4. So output for this will be 4 if this function is used for this table. It returns number of distinct non-null values. So it also does not count this null. तो इस केस में भी आपका null नहीं आएगा. Now next function, that is sum. Sum we already know that it is used to calculate the total of the values which are given as an input. So here it is used in two ways in SQL. One is that we will write sum function and we will put any attribute name or field name as an argument. Then what will happen if we are going to pass any column name as an argument? Then it is going to calculate the sum of all non-null values, means the values which are not null. For example, here 70,000 plus 50,000 plus 50,000 plus 45,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000. तो इन सब का जो सम होगा वो यहाँ पे आपका एज एन आउटपुट आ जाएगा. नाउ सम डिस्टिंक्ट सैलरी. तो इस केस में क्या होगा, सिर्फ डिस्टिंक्ट सैलरी जो यूनिक सैलरी है उनका ही सम होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 70,000 है, देन 50,000 है, देन 45,000 है और
40,000 है, तो इन चार वैल्यूज़ का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा और यहाँ पे एज एन आउटपुट आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन, एवरेज. Average function is used to find the average of the values which are written in the column. Now average salary, तो यहाँ पे भी दो तरीके से है. Average salary means जो भी सैलरी में नॉन नल वैल्यूज़ होंगी उनका सम होगा अपॉन काउंट सैलरी. तो यहाँ पे भी नॉन नल वैल्यूज़ होंगी, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा, जो इन सारी वैल्यूज़ का सम है अपॉन आपका आ जाएगा 6. और नेक्स्ट वाले में क्या होगा, किसका सम होगा, जो हमने देखा था ये यूनिक सैलरीज हैं, 70,000 प्लस 50,000 प्लस 45,000 प्लस 40,000 अपॉन 4. नेक्स्ट इज min function. Min is used to find the minimum value among the given values as an input. So here if we are passing any column as an argument, तो उस कॉलम में जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, उनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी डिस्प्लेड एज एन आउटपुट और दैट विल बी रिटर्न बाय दिस फंक्शन एक्सेप्ट नल. तो नल वैल्यू को छोड़ के जो भी इसमें मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी द आंसर. नाउ मैक्स सैलरी, इट गिव्स यू द मैक्सिमम वैल्यू. सो यहाँ पे जो भी कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी द रिटर्निंग वैल्यू. नाउ लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस. Display total number of teachers. So we will see this is a teacher table and we have to display the total number of teachers. तो obviously जितने भी रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे हर एक रिकॉर्ड में अलग अलग टीचर है, यूनिक टीचर है. तो अगर हमने इन रिकॉर्ड्स को काउंट कर लिया तो obviously हमें नंबर ऑफ़ टीचर्स भी पता चल जाएंगे. तो हमें पता है कि रिकॉर्ड्स काउंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, काउंट स्टार. इवन हम यहाँ पे काउंट टीचर नेम भी यूज़ कर सकते हैं. सो इस सेम क्वेश्चन के लिए हम अलग अलग क्वेरीज लिख सकते हैं. लाइक फर्स्ट वन सेलेक्ट, फिर हम लिखेंगे काउंट स्टार, देन फ्रॉम टेबल नेम दैट इज टीचर. तो ये भी सेम आउटपुट देगी, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स. और या फिर हम ये भी लिख सकते हैं सेलेक्ट काउंट टीचर नेम फ्रॉम टीचर. सो यहाँ पे जो टीचर नेम है उसमें कोई भी वैल्यू नल नहीं है, सब में यूनिक टीचर्स नेम है. सो हम टीचर नेम कॉलम में भी काउंट कर सकते हैं. सो दीज बोथ क्वेरी विल वर्क एंड विल गिव अस द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले नंबर ऑफ टीचर्स हुज सैलरी इज़ ग्रेटर देन 50,000. तो यहाँ पे हमें सारे रिकॉर्ड्स नहीं काउंट करने हैं. यहाँ पे कंडीशन आ गई है वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 50,000, वहीं उन्हीं रिकॉर्ड्स को हमें काउंट करना है. सो वेन एवर देर इज़ अ कंडीशन तो हम वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे. सो वी विल राइट सेलेक्ट, देन नंबर ऑफ टीचर्स वी हैव टू फाइंड. सो वी कैन राइट काउंट सैलरी. सैलरी काउंट होगी हमारी यहाँ पे, यानी कि सैलरी वाले कॉलम में रिकॉर्ड्स काउंट होंगे फ्रॉम टेबल नेम दैट इज टीचर. एंड देन कंडीशन इज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000. सो वी आर गोइंग टू राइट सैलरी ग्रेटर देन 50,000. सो इवन यू कैन यूज़ वेयर क्लॉज विद एग्रीगेट फंक्शंस. और अगर आप चाहते हैं तो आप एक तरीके से और लिख सकते हैं इस क्वेरी को, सेलेक्ट काउंट टीचर नेम, क्योंकि टीचर नेम भी काउंट कर सकते हो आप, फ्रॉम टीचर. और कौन से टीचर नेम हमारे काउंट होंगे, वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 50,000. अब हम इसका आउटपुट देखें, अगर क्या आएगा, कैसे आउटपुट फाइंड होगा. सेलेक्ट काउंट टीचर्स नेम, तो किसको काउंट करना है, टीचर नेम वाले कॉलम को काउंट करना है. टीचर नेम वाले कॉलम की वैल्यूज़ को हमें काउंट करना है. फ्रॉम टीचर टेबल वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 50,000. तो यहाँ पे आप आपके रिकॉर्ड जो है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे. क्योंकि अगर हम सिर्फ ये लिखते सेलेक्ट काउंट टीचर्स नेम फ्रॉम टीचर, तो क्या हो रहा था, आपके सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जा रहे थे. किसके, सारे रिकॉर्ड इस टीचर नेम के सेलेक्ट हो जा रहे थे सो दैट इट कैन बी काउंटेड. बट जब आपने वेयर लगा दिया तो वेयर में क्या होता है,
आपके फ़िल्टर हो जाते हैं रिकॉर्ड्स किसके अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो कौन से रिकॉर्ड्स अब कंडीशन काउंट होंगे आपके, जिनकी सैलरी जो है वो 50,000 से ग्रेटर है। तो एक फर्स्ट वाला होगा 70,000 वाला, एंड देन ये वाला 70,000. So only the two records will be counted because we have put the condition here. So 2 will be the output for this query. Now next one, display minimum salary and maximum salary from this table. So हमें मिनिमम सैलरी फाइंड करनी है। इस केस में हमें सैलरी वाले पे ही मिनिमम और मैक्सिमम यूज़ करना होगा, क्योंकि इसमें तो हम सैलरी पे भी यूज़ कर सकते थे काउंट, और टीचर्स ने पे भी काउंट कर सकते थे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बट इन दिस केस नाउ वी हैव टू पुट दिस मिन फंक्शन इन दिस सैलरी कॉलम ओनली, क्योंकि हमें इस कॉलम में ही मिन फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू इस कॉलम से ही फाइंड करनी है। सो वी विल राइट मिन salary comma max salary. So how we are going to write the query for this? Select min then salary. आपको ये कीवर्ड अच्छे से पता होना चाहिए कि मिनिमम के लिए MIN यूज़ होता है, जैसे कल हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए देखा था, असेंडिंग के लिए ASC और डिसेंडिंग के लिए DESC। ऐसे यहाँ पे मिनिमम के लिए MIN एंड मैक्सिमम के लिए MAX. Then you will write the column name, then from teacher. तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, तो हमारी क्वेरी बस इतनी हो जाएगी। अब इस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा? आपका आउटपुट आ जाएगा जो भी मिनिमम सैलरी होगी, दैट इज़ आई थिंक 40,000, येस इट इज़ 40,000, और मैक्सिमम आपकी 70,000। तो इस केस में जो आपका आउटपुट आएगा ना, दैट विल बी 40,000 एंड 70,000, और इसके ऊपर ये एज अ कॉलम नेम आ जाता है आउटपुट में, मिन सैलरी, और इस कॉलम के ऊपर आ जाएगा मैक्स सैलरी। तो अगर आपको चाहिए कि ये कॉलम नेम इस तरीके से ना आए, कॉलम नेम शुड बी सूटेबल, लाइक यहाँ पे आ जाए आपका हाईएस्ट मिनिमम सैलरी, और यहाँ पे पूरा कंप्लीट आए मैक्सिमम सैलरी। तो अगर आपको कॉलम नेम चेंज करना होता है अपने आउटपुट में, देन व्हाट यू कैन डू, you can put here as you will write as, and then जो भी कॉलम नेम आपको चाहिए आउटपुट में, like you will write as minimum salary. So I am going to write it properly. So if you want to change the column name in the output, so what you will do, you will write here select min salary, then you will write as minimum salary, then comma max salary as maximum salary, or highest salary, whatever you want, column name in the output, from then table name, that is teacher. So इस केस में अब आपका आउटपुट क्या आएगा? सेम आउटपुट विल बी देयर। मिनिमम में आपका आ जाएगा 40,000, और मैक्सिमम में आपका आ जाएगा 70,000। बस इसमें क्या चेंज आएगा कि अब आपको पता है कि आपका आउटपुट में जो कॉलम नेम है दैट विल बी मिनिमम सैलरी, जो भी आपने डिफाइन किया है एज कीवर्ड यूज़ करके, और यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगा मैक्सिमम सैलरी। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एग्रीगेट फंक्शन हम क्वेरीज में यूज़ करते हैं। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द CBSE sample paper. First question is, consider a table factory. So this is a table in which year is given and production is given. Reema wants to calculate the average production of the years 2008 to 2012. तो 2008 से लेके 2012 तक जितना भी प्रोडक्शन हुआ है इनका एवरेज फाइंड करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि एवरेज फाइंड करने के लिए व्हाट कीवर्ड वी यूज़, वी राइट AVG. AVG is the function which is used for finding the average. एंड वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ द प्रोडक्शन। तो हमें इस प्रोडक्शन का एवरेज फाइंड करना है, तो हम कौन सा कॉलम पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट? प्रोडक्शन, एंड ओबियसली देन फ्रॉम देन टेबल नेम। यहाँ पे कोई कंडीशन तो है नहीं। सो नाउ विल सी द ऑप्शंस बिकॉज इट इज़ रिटन सेलेक्ट द करेक्ट SQL कमांड फॉर इट। सेलेक्ट एवरेज, सो सी नेम ऑफ द फंक्शन इज़ रॉन्ग, सो ये वाला तो ऑप्शन सही है नहीं। सेकेंड वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है।
थर्ड सम लिखा है तो सम इज़ नॉट यूज फॉर फाइंडिंग द एवरेज. नाउ फोर्थ ऑप्शन, सेलेक्ट AVG प्रोडक्शन फ्रॉम फैक्ट्री. सो सी, जब हमें एग्रीगेट फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हम बहुत ईजिली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कंसिडर द टेबल AMP cell. So this is a table whose name is AMP cell. 3 columns are given, ID, salary and department. तो देखिए यहाँ पे नल है आपका सैलरी में एक वैल्यू. नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन. Read the following 2 commands carefully. So first command is select count salary from EMP cell and select count star. तो अभी हमने पढ़ा है कि count star में क्या होता है, आपके सारे रिकॉर्ड्स काउंट हो जाते हैं वेदर इट इज़ नल और नॉट नल. सो जबकि काउंट और अगर आपको कॉलम नेम दिया है तो आपकी नल वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं होती हैं. ठीक है, तो ये हमें डिफरेंस पता होना चाहिए. नाउ वी विल सी, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. What are the options? The first and second will give the same output as 3. तो पहले हमें इन दोनों का आउटपुट देखना है. तो सेलेक्ट काउंट सैलरी, इस केस में क्या होगा आपका 1 2 3. ये नल वाला काउंट नहीं होगा तो इसका आउटपुट हो गया 3. काउंट स्टार में ये सारे काउंट हो जाएंगे, इट मीन्स 1 2 3 4. तो फर्स्ट वाला आपको आउटपुट 3 दे रहा है और सेकेंड वाला आपको 4 दे रहा है. सो हेयर it is written both will give 3, wrong. Second is output of first is 3 and output of second is 4. So here option B is the correct option. So this much in this video. I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और एग्रीगेट फंक्शंस का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके बाद जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज़ ग्रुप बाय क्लॉज. और ग्रुप बाय क्लॉज के लिए हमें एग्रीगेट फंक्शंस बहुत अच्छे से आने चाहिए. देन ओनली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ group by. So if you find this video helpful in the revision of IT, then please like this video. कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, and subscribe our channel. Thank you for watching this video.